Assalamualaikum and very good morning to my dear students. How are you all? You all are healthy? Very good. Alhamdulillah for that. So my dear students, this video for class 5 and this is for our BED subject. Okay dear? So in previous video what we learn? We learn about 5 branches of Islam and one of the topic of their Hajj. Okay, so my dear students, we repeat that thing first. What is which are 5 branches of Islam? First one, imaniyat, faith; ibadat, act of worship; muamalat, business dealing; muashrat, social life; and akhlaqiyat is our good character, right? So in ibadat there is a salah, zakah, hajj. अंडरस्टूड दिस ऑल थिंग्स इबादत में आती है. ओके, सो हमने उस दिन किस चीज़ पर डिस्कस किया था? हज पर. किस चीज़ पर? हज पर. क्यों किया था? बिकॉज दिस इज़ द मंथ ऑफ जिल हज. ओके, पता है ना बेटा? दिस इज़ द मंथ ऑफ जिल हज. ओके, सो दैट डे आई टेल यू द डेफिनेशन ऑफ Hajj. So who learned that definition? Okay, we repeat one more time that thing. Okay, so to visit Makkah and perform specific action during the days of Hajj is called Hajj. To visit Makkah and perform specific actions during the days of Hajj is called Hajj. Okay, I will send you a PDF, these 5 branches of Islam and everything. Okay, now today we discuss about Dua and Sunnah, which is the Dua and Sunnah are green pages in BED book. You can see on your screen first of all Bismillahirrahmanirrahim and then Talabul ilmi farizatun ala kulli muslimin, and there is translation also, seeking knowledge is obligatory for every Muslim. मतलब इल्म का तलब करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है. क्यों फ़र्ज़ है? क्योंकि देखो हमारी ज़िंदगी ही इस चीज़ के ऊपर है कि हम सुन्ना वे ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करें और कुरान करीम में जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उस पर अमल करें. क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या सही है, क्या गलत है, उसको अच्छी तरह से जान लें. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन योर BED बुक, ओके, there is some sections, blue pages and green pages and purple and yellow and pink. You know that thing na? You learn in 4th standard also this thing. Okay, so we start from green pages. So first of all, what is the definition of Dua and Sunnah? And before this there is a blue pages also. There is 2 type of definitions are there. First one is Qiraatul Quran and second one is which one? You learn na in 4th standard also. Very good. Qiraatul Quran and Hifzus Surah. Qiraatul Quran and Hifzus Surah. Only I tell you that definition first. Qiraatul Quran means to recite the Quran by looking in is called Qiraatul Quran. कुरान करीम का अंदर देख कर पढ़ना उसको क्या कहते हैं? क़िराअतुल कुरान. दैट इज़ वन ऑफ द हदीस ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड टू अबू दर रज़ियल्लाहु अन्हु, give importance to the recitation of the Quran and the zikr of Allah because you will be remembered in the heavens and it will be a light of guidance for you on earth. क्या कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? कि कुरान करीम का पढ़ना क्या है हमारे लिए? जन्नत में भी और दुनिया में भी हमें सही रास्ता दिखाने वाली चीज़ है. ओके, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से when a person keeps the Quran before him,
that is the practices upon its teachings, the Quran will lead him to Jannah. As for one who cuts the Quran behind his back, that is, he does not practice upon its teachings, the Quran will throw him into Jahannam. कुरान करीम, जो इंसान कुरान करीम को हमेशा अपने आगे रखता है, आगे रखने का मतलब ये होता है कि रोज़ाना उसकी तिलावत करना, घर के अंदर हो चाहे आप बाहर हो, कुरान करीम की तिलावत करना, तो वो कुरान करीम आपको कहाँ ले जाएगा? जन्नत में। ऑब्वियस थिंक है बेटा ये तो, राइट। और अगर हम उसको पीछे छोड़ देते हैं, यानी नाउज़ुबिल्लाह हम अपनी दुनिया में मस्त है, जैसे कि अभी हो ही रहा है ऐसा। पढ़ते हो कुरान करीम? सच बताओ। मदरसे जाते हो तब थोड़ा सा पढ़ लिया, या फिर कुछ भी मदरसे का लर्न करना है तो पढ़ लिया। अभी तो मदरसा भी ठीक से नहीं चलता है, तो वो भी नहीं होती है चीज़ें, राइट। सो स्पेसिफिक टाइम, जैसे कि आप स्कूल हो, ट्यूशन हो, या किसी भी काम का आपका एक टाइम मुतय्यन होता है, तो आप कैसे बैठ जाते हो उसके लिए? सो ऐसे ही एक टाइम मुतय्यन होना चाहिए जिसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ कुरान करीम की तिलावत करें। सो दैट वन इज़ टेक यू इन अ जन्नत, वो आपको जन्नत में ले जाने का सबसे बेहतरीन रास्ता है। देखो बेटा, यहाँ वहाँ की दुनियावी बातें करना, या किसी की गिबत करना, या चुगली करना, ये सारी चीज़ें क्या है? आपको हमेशा नुकसान में ही रखेगी। अल्लाह आप जैसे ही गुनाह करते हो ऐसे ही आपको सज़ा दे देता है, ऐसा नहीं है, राइट। बट फिर भी हमको जाना, जहाँ से आए हैं वहाँ जाना तो है ना बेटा। इसलिए हमेशा और हमेशा क्या चीज़ पर अमल करना चाहिए? कुरान करीम की तिलावत, फ़र्ज़ नमाज की अदायगी, और जो भी कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुनियावी ज़िंदगी जीने का तरीक़ा सिखाया है और आखिरत बनाने का तरीक़ा सिखाया है, उसी चीज़ के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। द कुरान इज़ द बुक ऑफ अल्लाह। Learning, teaching and practicing upon it are a great act of ibadah which earn tremendous reward and blessing. Which earn tremendous reward and blessing. क्या कह रहे हैं बेटा? कुरान करीम एक ऐसी किताब है अल्लाह ताला की जिसका सीखना, सिखाना और उस पर प्रैक्टिस करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को जानना। देखो, सिर्फ अरबिक में आप कुरान रीड करते हो, सही मखरज के साथ पढ़ते हो, नो डाउट इन दैट कि आपको उसका सवाब मिलता है, आप अच्छी तरह से सीख रहे हो उसका। लेकिन जब उसके मीनिंग समझने लगो ना, तो मीनिंग समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले अरबिक सीखना पड़ेगा, राइट। सो जैसे जैसे इंसान उसके मीनिंग को समझने लगता है और उसके थ्रू कुरान करीम को ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करता है, किस चीज़ का अल्लाह ने अंदर हुक्म दिया है, क्या चीज़ हमारे लिए हलाल है, क्या हराम है, औरतों के क्या हुकूक है, मर्दों के क्या हुकूक है, बच्चों का क्या है, सहाबा की ज़िंदगी क्या थी, सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएगी। सो कुरान करीम एक ऐसी किताब है अल्लाह की जिसका सीखना भी सवाब, सिखाना भी सवाब, और उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करना, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज सीख करना, दैट इज़ क्या है? अर्न ट्रिमेंडस रिवॉर्ड एंड ब्लेसिंग्स। वो क्या है? बहुत ही ऊंचे दर्जे का अल्लाह ताला उसके लिए हमें रिवॉर्ड देता है। अंडरस्टूड बेटा? सो इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी फॉर एवरी पर्सन टू लर्न टू रिसाइट द कुरान एंड मेक एन एफर्ट टू रिसाइट इट करेक्टली। क्या है? नेसेसरी यानी ज़रूरी है हर इंसान के लिए, हर मुसलमान के लिए उसका सीखना, पढ़ना, रेसिटेशन ऑफ कुरान, एंड मेक एन एफर्ट टू रिसाइट इट करेक्टली। सबसे ज़्यादा मेहनत मैंने अभी कहा आपको किस चीज़ में करनी है? पहले तो उसके सही मखारिज, सही तलफ़ुज़ और सही अल्फाज के साथ कुरान करीम का पढ़ना, ये सबसे पहली चीज़ है बेटा। उसके बाद दूसरी चीज़ें तो है कि आप कैसे उसका मीनिंग सीखोगे या क्या करोगे। एक चीज़ हमेशा याद रखना, कुरान करीम यानी कुरान करीम की जो लैंग्वेज है, अरबिक लैंग्वेज, उसमें सिर्फ ज़बर या ज़ेर आप ऊपर नीचे कर दोगे ना, सिर्फ ज़बर या ज़ेर की गलती करने की वजह से भी उस चीज़ का मीनिंग चेंज हो जाता है। सो नाउज़ुबिल्लाह, आपने किसी वर्ड को गलत पढ़ा
बगैर जाने गलती होती है, नो डाउट इन दैट, और उसके लिए कोई ये नहीं है। लेकिन एक बात कह रही हूँ कि अगर उसको सही तरीके से पढ़ना सीख लोगे ना पहले सबसे बड़ी कामयाबी तो हमारी वही है कि हम सही तरीके से कुरान करीम को पढ़ना सीखें। क्योंकि अरबिक लैंग्वेज ऐसी है बेटा, कुरान करीम की जो लैंग्वेज है उसमें अगर आप ज़बर या ज़ेर की भी गलती करते हो तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है उसका। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर टुडे in this video we stop here, and inshallah we will discuss something more tomorrow from our VD book. Okay, till then stay home, stay safe, and dua for everyone to peaceful life. Assalamu alaikum.